Hello everyone, welcome to Aptitude Plus Academy for Civil Services. Hope all of you are preparing well with your examination. This is the video on daily topic-wise news analysis where I'll be covering the news from the Hindu and Indian Express, and the USP of our initiative is that we try to make the news as holistic it could be in a very simple manner. So let's get started with the topic first. Today is 29th of October and the first topic is dashboard to monitor air quality. Second is annual state of education report. Third is countering defects and the most serious AI threat. The second last topic is second India Central Asia dialogue. And the last topic is Central China's stand on the US support to India. So these are the report and the news that were reported in the newspaper. Apart from news, I'll be discussing some MCQs question at the end of this video with the explanation of yesterday questions. So make sure that you stay tuned till end of this video so that you could practice some important questions. So let's get started. And those of you who are appearing for mains this year, we have mains 2020 answer writing evaluation program where your answers which would be there would be evaluated and you'll be getting the feedback for that, right? So what you can do, you have to check the description section of this video. You can enroll for this initiative, right? Now coming to the first news, that is dashboard to monitor the air quality. So talking about this news which has been reported in the Indian Express, this is pretty much relevant for your general studies paper 3 and it would be equally important for your prelims examination as well. So let's see what are the details coming from this news. So recently the central government has launched a dashboard which will be monitoring the air quality in the Indian cities. So जिस तरह से air quality deteriorate हो रही है इंडिया के सारे cities में, स्पेशली विंटर में कुछ cities like दिल्ली, NCR के जो regions है, गुड़गांव, हरियाणा, फरीदाबाद, इन areas में air quality जो air pollution है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है. And air quality in India is better known as AQI, air quality index के थ्रू इनको measure किया जाता है. बेसिकली ये जो इस बार जो डैशबोर्ड सेटअप की गई है, सो दिस वाज सेटअप बाय द क्लाइमेट एंड एनर्जी न्यूज साइट विच इज नेम एज कार्बन कॉपी. कार्बन कॉपी ने एसोसिएट किया था, मुंबई बेस्ड एक स्टार्टअप है रेस्पिनवर लिविंग साइंसेस, जो कि एक कंपैरेटिव पिक्चर देती है पार्टिकुलेट मैटर को लेकर के. दिस इज द पीएम और जो 122 सिटीज़ हैं उसमें ये पहले से इवेल्युएशन करती आ रही हैं, अपनी पिक्चर्स देते आ रही हैं सिंस 2016. So particulate matter as in concept is again very important for your prelims examination. UPSC ने particulate matter 2.5 पे भी questions पूछे हुए हैं 2016 के examinations में. So make sure आपको इसके बारे में सारे concepts clear हैं. Now advantages of the new dashboard, जो नई dashboard बनी है उसके क्या क्या advantages होंगे. So the first, the dashboard would provide a comprehensive picture about the National Ambient Air Quality Standard, जिसको NAAQS भी कहते हैं, and this is under the National Air Quality Monitoring Program, जो NAMP गवर्नमेंट की प्रोग्राम है उसके अंदर की comprehensive तरीके से बनाया गया जहाँ पे एयर क्वालिटी को इवेल्युएट की जाएगी. Now the center would be launching the National Clean Air Program. This was basically launched in 2019. ये already 19 में launch कर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ पे 122 cities को मॉनिटर किया जा रहा है, उनके जो एयर क्वालिटीज़ हैं उनको मॉनिटर किया जा रहा है. Now these cities are referred as non-attainment cities and they did not meet the National Ambient Air स्टैंडर्ड जो हैं वो बहुत सारी सिटीज़ अभी भी ऑलमोस्ट काफ़ी सिटीज़ हैं जो कि अभी तक स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर पाई हैं फ्रॉम 2011 to 15 अंडर द नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम. दिस इज NAMP, right? Of things are clear till here. Now coming to the other key highlights. So a total of 59 among 122 cities have particulate matter 2.5 basically polluted which is available. तो 2.5 अभी तक की सबसे हानिकारक particulate matter है. और अगर cities की बात करें तो नोएडा which is there in the NCR region और यूपी की एक बहुत बड़ी commercial hub है नोएडा. So Noida has been ranked with 119 followed by Agra, Delhi, Lucknow, Ghaziabad, Muzaffarpur, कानपुर, चंडीगढ़, हावड़ा एंड कैलकाटा, राइट. सो यहाँ एक चीज़ क्लियर कर दूँ, हावड़ा और कैलकाटा दो इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट हैं. कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं वेदर हावड़ा इज देयर इन कैलकाटा और कैलकाटा विच इज इन हावड़ा. सो दीज टू आर द सेपरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल विच इज एडजेसेंट टू ईच अदर.
Now talking about Delhi, Delhi has been ranked among the most populated state. अगर स्टेट की बात करें, यूनियन टेरिटरी की बात करें, तो सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन दिल्ली में है, जहाँ पे एवरेज 3 ईयर पर्टिकुलर जो 10 जो मॉनिटरिंग डेटा है उसके मुताबिक. उसके बाद Delhi is being followed by Jharkhand. तो Jharkhand in number 2nd and the 3rd rank is backed by Uttar Pradesh. Now out of 23 state which is listed in the non-attainment cities में, तो only कुछ ऐसे लिमिटेड सिटीज़ हैं जैसे चंडीगढ़ है, हिमाचल प्रदेश, राइट, पंजाब. सो दीज आर द सिटीज जहाँ पे एवरेज परफॉर्मेंस देखी गई है, बहुत ज़्यादा खराब नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, राइट. सो दीज आर द की हाईलाइट्स of the cities if you're talking about the particulate matter 2.5 and PM10. Now coming to the other news, that is annual state of education report. So this has been reported in the Hindu. बात करें इस तरह के इम्पोर्टेंस की, तो आप इस चीज़ को ऐसे पेपर में यूज़ कर पाओगे, एंड डेफिनेटली एनी टाइम दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर जनरल स्टडीज पेपर 2. So recently the annual state of education report was surveyed and it was released, and according to the ASER, इसको शॉर्ट में ASER भी कहते हैं, ये जो सर्वे है ये हमें बताती है about 20% of the rural children have no textbook at home. ये सर्वे जो द इंटेंशन बिहाइंड दिस सर्वे वाज दैट कि ड्यूरिंग लॉकडाउन कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके पास एक्सेस टू बुक्स है ताकि वो घर में पढ़ सके, बिकॉज द लॉकडाउन हैज़ कंटिन्यूड फॉर मोर देन 6 months, राइट. इतने टाइम में बच्चों की जो एजुकेशन खराब हुई है, क्या उन्होंने अपने बुक्स से या खुद से सेल्फ स्टडी से कंपनसेट कर पाए हैं अपने एजुकेशन को, उसके बारे में ये सर्वे की गई थी. Now the survey was conducted in September, the 6th month of the school closure due to the COVID-19 across the country. Now annual status of the education report जो है एक नेशनल वाइड सर्वे होती है जहाँ पे जो रूरल एजुकेशंस हैं, जो लर्निंग के आउटकम्स हैं, उनको देखा जाता है. रीडिंग की क्या स्किल्स है बच्चों में, अर्थमेटिक्स की क्या स्किल है, मैथमेटिक्स कैसी है, उनकी एनालिटिकल स्किल्स कैसी है, ये सारी चीज़ों को रिपोर्ट में कंसिडर किया जाता है. And the survey has been conducted by the NGO known as प्रथम, एक बहुत ही reputed NGO है जो कि इस पे काम कर रही है पिछले 15 साल से. And this year the survey was conducted via telephonic call because of the COVID-19 and maintaining the social distance. Everything was in the virtual mode. तो टेलीफोनिक कॉल के थ्रू लोगों को ऑलमोस्ट 52,227 हाउसहोल्ड को रखा गया, 30 स्टेट और यूनियन टेरिटरी इंक्लूड करके. Now ASER survey uses census of 2011 as the sampling frame. तो अभी जो प्रेजेंट सेंसस और सारी डेटाज में यूज होती है, तो बेसिकली ASER में भी 2011 के सर्वे के डेटाज लिए जाते हैं. Now ASER continues to be an important national sources for information about child foundation skill across the country, right? तो किस तरह से चाइल्ड्स के फाउंडेशन स्किल हैं, उनकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या एबिलिटीज़ हैं, रीडिंग एबिलिटी कैसी है, अर्थमेटिक स्किल्स कैसे हैं, ये सारी चीज़ों को इस रिपोर्ट पे कंसिडर किया जाता है. नाउ की फाइंडिंग ऑफ द ASER रिपोर्ट, जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें क्या क्या फाइंडिंग्स हैं उसको एक बार मैं आपको बता दूं. सो अबाउट 1 in 3, राइट, सो 1 in 3 चिल्ड्रन हैज़ डन नो लर्निंग एक्टिविटी एट ऑल. इनमें से कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कोई भी लर्निंग एक्टिविटी अभी तक नहीं किया हुआ है. एंड अबाउट 2 in 3 हैज़ नो लर्निंग मटेरियल और एक्टिविटी गिवन बाय देयर स्कूल इन अ वीक, राइट, और ओनली 1 हैड 10 सक्सेस क्लासेस ऑनलाइन, राइट. सो सिर्फ 10 में 1 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस की हैं. And the ASER survey give the glimpse into the level of learning which is losing, the student are losing. जो रूरल इंडिया की अगर बात करें, जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं. टेक्नोलॉजी जो बॉटलनेक्स हैं बेसिकली रूरल एरिया में वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि अगर आप वीडियो कॉल में पढ़ा रहे हो यू नीड अ 4G कनेक्शन एंड द डेटा इज स्टिल प्रीटी एक्सपेंसिव फॉर दैट पीपल. स्कूलिंग, फैमिली रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें जो एक डिजिटल डिवाइड कंप्लीट हुआ है कोविड-19 के टाइम में, खास करके डिजिटल डिवाइड इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, सो दिस हैज़ वाइडन अ लॉट. तो डिजिटल डिवाइड इन एजुकेशन एक पे ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में. सो मेक श्योर यू हैव एम्पल पॉइंट्स टू राइट इन द essay. Now it was found that 5.3% of the rural children at the age of 6 to 10, 6 से 10 साल के जो बच्चे हैं उनमें जो एनरोलमेंट भी रेशियो है वो भी काफ़ी कम है, राइट, इन कंपैरिजन टू 1.8% in 2018. Now among 15 and 18,
However, the enrollment level has actually slightly higher. यहाँ पे enrollment ratio थोड़ी सी increase हुई है. The enrollment pattern has shown slightly shift towards the government school, right? थोड़ी सी गवर्नमेंट स्कूल में जो enrollment है it has increased, क्योंकि कुछ अगर सिटीज की बात करें, दिल्ली की बात करें, केरला, तमिलनाडु, इन स्टेट्स में परफॉर्मेंस अच्छी हुई है compared to the private school, seeing the drop in the enrollment ratios. Now state wise report की अगर बात करें तो साउथ में जो आंध्र प्रदेश है वहां पे लेस देन 35% of the children had textbook. Rajasthan had only 60% people with the textbook, the children's, and more than 98% of the textbook in West Bengal, Nagaland and Assam. So these are the statewide report. Now permission to the states, अगर states की बात करें जिनको central government की तरफ से already they were permitted to open the school in limited conditions and circumstances. So although the central government has permitted the state to start the reopening of school if they follow the COVID-19 safety protocols, and majority of the country, the 25 crore students are still at the home after 7 straight months, right? Completely 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं. 25 करोड़ ऐसे बच्चे हैं पूरे भारतवर्ष में जो अभी भी अपने घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं या फिर उनकी जो क्वालिटी लेवल है वो काफ़ी ही खराब हो चुकी है, right? So this is what is there in the survey. Now this is an infographic, a glimpse whatever we have discussed. You can find this in the Hindu as well. So 5.3% rural children from age this much has a school ratio in comparison to this, which I have already told you. And about 70% of the rural child are living in activity, out of which only 11% of the children has online classes. So you can read this. This is the glimpse, a quick learning which you can have from this infographic. Now coming to the countering deep fakes and the most serious threat of the AI. So जो artificial intelligence की जो सबसे बड़ी threat है उसके बारे में पूछी गई है. So this is again very important for your general studies paper 3, and AI threat and deep fakes would be equally relevant for your prelims examination. Now disinformation जो है, hoax, अलग किसी तरह की अफवाह, that have evolved a high stake in the warfare for creating the social discord. और जिस तरह से पोलराइजेशन बढ़ी है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शन, फेक न्यूज़ का दौर इंडिया में बढ़ा है. यहाँ पे बात एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपको डीप फेक्स के बारे में पता चलना बहुत ज़रूरी है, राइट? सो आई विल टेल यू व्हाट इज दिस. सो एक्सेस टू कमोडिटी जो क्लाउड कंप्यूटिंग है, एल्गोरिदम्स हैं, अबुंडेंट डेटा है, दे आर परफेक्ट स्टॉर्म टू डेमोक्रेटाइज द मीडिया क्रिएशन एंड मैनिपुलेशंस. तो इस आर्टिकल में, इस एडिटोरियल में डीप फेक्स के बारे में बात की गई है. एक नई तरह की टूल है जहां पे कंप्यूटेशन प्रोपेगेंडा बनाए जाते हैं फॉर डिसइंफॉर्मेशन एट द लार्ज स्केल विद द स्पीड. अब ये डीप फेक्स क्या है मैं आपको आगे बताता हूं उसके बारे में. व्हाट इज डीप फेक्स? सो डीप फेक्स आर द डिजिटल मीडिया, एक तरह की वीडियो, ऑडियो, इमेजेस होते हैं जो कि मैनिपुलेटेड होते हैं यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आपने कई बार देखा होगा लिपसिंग की मदद ली जाती है, किसी एक पॉलिटिशियंस की या कोई एक्टर की वीडियो है किसी और के लैंग्वेजेस में उसको डाल दी गई हैं, या उस इमेज को सब्स्टिट्यूट करके किसी और के साथ रिप्लेस कर दिया गया है. इस तरीके को बोलते हैं डीप फेक्स. इफ यू हैव नॉट अंडरस्टैंड इट, व्हाट आई आस्क, आप एक गूगल पे जाएं, यूट्यूब पे बेसिकली, और आप डीप फेक्स लिखेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारी शॉर्ट वीडियो मिल जाएंगी which will help you understand कि deepfakes होते क्या हैं, right? So this is a synthetic media content which is referred as deepfakes. और deepfakes की अगर बात करूँ, एक हाइपर रियलिस्टिक डिजिटल फॉल्सिफिकेशन है, गलत तरीके से चीज़ों को दर्शाई जाती है और किसी भी इंडिविजुअल की जो इमेज है उसको डैमेज किया जाता है. इंस्टीट्यूशन, बिजनेस या डेमोक्रेसी को खतरे में डालने के लिए इस तरह की चीज़ें कही जाती है. जिस तरह से व्हाट्सएप में फेक न्यूज़ आते हैं या फेक वीडियोज़ आते हैं, दे आर ऑल द एग्जाम्पल ऑफ डीप फेक्स एंड दे आर ओनली पॉसिबल to fabricate the media, swap faces, lip licensing है, puppeteers. These were some of the constant thing like psychological security, political stability and business disruptions. तो बहुत सारे मेथड है, बहुत सारी तरीके हो सकते हैं डीप फेक्स के. ऑडियो हो सकते हैं, विजुअल हो सकते हैं, वीडियो रिप्लेसमेंट हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू, इमेजेस के थ्रू भी डीप फेक्स की जा सकती हैं.
नाउ टारगेटिंग वुमेन डीफेक्स की जो सबसे ज़्यादा जिसको इम्पैक्ट हुआ है डीफेक्स से वो है वुमेन्स. सो दिस इज द फर्स्ट यूज द केस इन द मैलिशियस यूज ऑफ डीफेक्स यूजिंग द pornography, inflicit emotions, reputation in some area, violence towards the individual. तो महिलाओं में कुछ ऐसी आपत्तिजनक चीज़ों का होना या उनके पिक्चर्स को या इमेजेस को रिप्लेस कर दिया जाना किसी दूसरे वीडियोस के साथ. सो दीज आर सम ऑफ द मैलिशियस थिंग्स दैट आर टेकन प्लेस विद रिगार्ड्स टू वुमेन. And deepfakes depict the person including in the antisocial behavior, saying the willy things. And this has also severe implication on the reputation, and this lead to the stoppages of the profession and personal life. So stoppaging मतलब होता है किसी के reputations को पूरी तरह से ध्वस्त कर देना, खत्म कर देना. Now deepfaking can also be deployed in extracting basically money, confidential information, exact favor from the individual. तो किसी को भी गुमराह करने के लिए, किसी को बेसिकली ब्लैकमेलिंग करने के लिए डीफेक्स की मदद ली जाती है. नाउ अंडरमाइनिंग द डेमोक्रेसी, इससे हमारे लोकतंत्र जो है, जो हमारा डेमोक्रेसी है, उसको खतरा है. डीफेक कैन ऑल्सो अल्टरिंग द डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स, अंडरमाइन द ट्रस्ट इन द इंस्टीट्यूशन एंड एम्पावर द डिप्लोमेसी. और फॉल्स इंफॉर्मेशन जो है इंस्टीट्यूशंस के बारे में, पब्लिक पॉलिसी के बारे में, पॉलिटिशियंस के बारे में, कैन इवन एक्सप्लॉइट और मैनिपुलेट द बिलीफ ऑफ द सिटीजन. एंड वोटर कैन बी कन्फ्यूज्ड, जो मतदाता है, जो मतदान करेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं और एक नेगेटिव इंप्रेशन भी किसी पॉजिटिव के प्रति बनाया जा सकता है या किसी पॉजिटिव के प्रति नेगेटिव इंप्रेशन भी बनाया जा सकता है. नाउ द हाई क्वालिटी डीफेक्स कैन इंजेक्ट कंपेलिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, जहाँ पे एक तरह से एक पैरेलल नैरेटिव की जाती है क्रिएट, खास करके पॉलिटिकल टाइम्स में किसी के पुराने वीडियोस के साथ किसी के लिपसिंग कर दी ताकि वो एक जैसा लगे देखने में, राइट. सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ डीप फेक्स. नाउ क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं प्रेजेंट के कंटेक्स्ट में. तो सबसे पहली जो ज़रूरत है कि जो ट्रुथ है, जो सच्चाई है, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उसको एक मल्टी स्टेज बनाया जाए, मल्टी मॉडल अप्रोच बनाया जाए और कोलैबोरेटिव अप्रोच होनी चाहिए, टेक्निक्स होनी चाहिए, एक प्रॉपर रूल्स होने चाहिए. अगर इस तरह के कोई प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं तो उसमें पीनल प्रोविजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. उसके अलावा मीडिया लिटरेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज समटाइम्स होता क्या है, मीडिया बिना किसी चीज़ को ऑथेंटिकेट किए हुए चैनल्स में चला दे रही है. कुछ ऐसे मीडिया हाउसेज हैं जिनकी ऑथेंटिसिटी काफ़ी ख़राब है, उनको अपनी रेपुटेशन की कोई परवाह नहीं है, उनको टीआरपी की मदद चाहिए, बस उन्हें टीआरपी चाहिए, कोई सा भी वीडियो चला देते हैं, राइट. तो जर्नलिस्ट एंड मीडिया हाउसेज नीड टू कम्बाट दिस. जो डीफेक्सेस हैं उनको फिल्टर करने की ज़रूरत है, ऑथेंटिकेट करने की ज़रूरत है. एंड इम्प्रूविंग द मीडिया लिटरेसी वुड बी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. और जो सबसे ज़्यादा चीज़ें एक इम्पॉर्टेंट है वो एक इंडिविजुअल कॉन्शियस और इंडिविजुअल लिटरेसी. आपको, मुझे, हर लोगों को इस चीज़ से अवेयर होना होगा कि कैसे वी कुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. एक कंज्यूमर मीडिया जो इंटरनेट यूज़ कर रहा है उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी. उसे ये समझना होगा कि कहाँ पे किस चीज़ों को सोशल मीडिया में आगे बढ़ाना है, किस चीज़ को फॉरवर्ड करना है, किस चीज़ को ब्लॉक करना है. दीज आर द थिंग if we start practicing, I can guarantee you over that time we could able to solve this problem, right? But this is a long term solution which we would have to take, but initially if we start also, the result will be shown in the coming years. Now coming to the other topic, that is Second India Central Asia Dialogue. So this is again very much relevant for your general studies paper 2, and Central Asia Dialogue is again important for the prelims examination. Now recently second meeting हुई है सेंट्रल एशिया डायलॉग, जिसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किया गया, और एक जॉइंट मीटिंग थी जहाँ पे जो सेफ हेवेंस है टेररिज्म के, उसको किस तरह से ख़त्म किया जाए उसके बारे में बात की गई. And the second meeting of the India and the Central Asia Dialogue was jointly supported in the peace negotiations between the Afghanistan, and it expected to usher the new age of war-torn country. और इंडिया ने डिस्क्राइब किया है कि सेंट्रल एशिया एक ऐसा रीजन है जहाँ पे एक्सटेंडेड नेबरहुड बढ़ाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, एंड इंडिया इज कंसर्न विथ रिगार्ड्स टू द एक्सटेंडेड नेबर्स इन द सेंट्रल एशिया, राइट. सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. नाउ कॉल फॉर स्ट्रॉन्ग एक्शन. यहाँ पे बताया गया कि जितने रिप्रेजेंटेटिव कंट्रीज़ हैं उन्होंने कंडेम किया कि किसी भी फॉर्म में टेररिज्म को किसी भी मैनिफेस्टेशन में कंसिडर नहीं किया जाना चाहिए, एंड द कंट्री हु इज अशरिंग द टेररिज्म शुड बी इमीडिएटली पनिश्ड, राइट. उस देश को
पनिशमेंट देने की ज़रूरत है, बिकॉज किसी भी कंट्री को टेररिज्म के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता है. And to reaffirm the determination of their countries to combat the menace destroying the safe haven network infrastructure and funding channels. They also underline कि जो हर कंट्री है वहाँ पे ये इंश्योर किया जाए कि किसी भी कंट्री को टेररिज्म के लिए यूज़ ना किया जाए, टेररिज्म लॉस सेंटर्स या टेररिज्म ट्रेनिंग के लिए यूज़ ना किया जाए, जैसा कि हमें एग्जाम्पल बहुत अच्छे से पता है, पाकिस्तान ऐसा करता आ रहा है, राइट. Now take away of the meeting. Basically the meeting was announced on the additional 1 billion line credit जो है वो इंडिया ने सेंट्रल एशियन कंट्रीज को दी है मदद के तौर पे, and it is expected that the money would be sent to the major infrastructure और connectivity projects जो है पूरे सेंट्रल एशिया को इंडिया के साथ कनेक्ट करने में, जो पूरी सेंट्रल एशिया है that should be connected with the India, ये कोशिश की गई है इस फंड क्रेडिट लाइन के थ्रू. Now the meeting has also led to the announcement of the grant India for a high impact of the community development in these countries, and it can also establish the working group of India. Central Asia Business Council जो है उसको मदद करेगी, और जितने चैम्बर हैं जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं they would be also benefited with this, right? Now, चाबहार पोर्ट की भी डिस्कशन हुई इस मीटिंग में. तो द जॉइंट स्टेटमेंट हाईलाइटेड द अप्रिसिएशन फॉर्म ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर्स, जो कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज है सेंट्रल एशिया के, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान. तो इन जगह के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि मॉडर्नाइज करना चाबहार पोर्ट जो कि ईरान में है वो सारे कंट्रीज़ को मदद करेगा, और इंडिया ने जो एफर्ट्स दिखाई हैं चाबहार पोर्ट को बनाने में वो इट्स कमेंडेबल, वो बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएटिव है. Now the port will also become an important link in the trade and transport communication between the market, Central Asia and South Asia, connecting India, right? Now the last news, that is China's stand on the US support to India. This is again a news which would be relevant for your general study paper 2. और अगर prelims की बात करें तो यहाँ पे prelims के point of view से कुछ चीज़ें important नहीं होगी. Now China has accused the United States, the Secretary of State, कि उन्होंने जो इंटरनेशनल रिलेशंस की वायलेशंस की हैं, क्योंकि उनका कहना है कि चाइना अपने जो पुराने एग्रीमेंट्स हैं जहाँ पे उन्होंने कहा था कि नो स्पेस फॉर द थर्ड पार्टी इंटरवेंशन होना चाहिए, और चाइना ने एक्यूज़ किया है कि यूएस जो है वो ज़बरदस्ती जो बायलैटरल इश्यूज़ हैं उस पर आ रहा है और इंडिया और चाइना के बीच में नेगोशिएशन में मदद कर रहा है. So this is the acquisition which is coming from the Chinese, but we from the India side want that China should be held accountable for anything that is held in the country, because they are supporting Pakistan in general in the background, right? Now US support to India, जो US का Secretary of State है, उन्होंने कहा है कि they would stand with the people of India and the country because they face threat to their sovereignty and liberty. तो ऐसा कहना है यूएस का सेक्रेटरी स्टेट का, क्योंकि जो इंडिया की सोवरनिटी है उसको बचाने में अमेरिका मदद करेगा. एंड ही ऑल्सो हिट आउट कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है उसने नो फ्रेंड डेमोक्रेसी की मदद एक दिखाया है, जो रूल ऑफ लॉ होनी चाहिए, जो रूल ऑफ ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होनी चाहिए साउथ चाइना सी में, वो नहीं रही है. और जो फाउंडेशनल ऑफ फ्री एंड ओपन प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें चाइना ने बहुत हद तक डोमिनेट किया है और चीज़ों को हिंड्रेंस किया है, ट्रबल किया है इंडिया जैसे कंट्री को, राइट. सो दिस इज व्हाट द यूएस हैज सपोर्टेड टू इंडिया. नाउ जियोपॉलिटिकल गेम्स की बात कही गई यहाँ पे. तो फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं चाइना के, उन्होंने एक्यूज़ किया कि यूएस जो है वो प्रीचिंग एन आउटडेटेड कोल्ड वॉर मेंटालिटी एंड प्रीचिंग द कन्फस्ट्रेशन ऑफ द जियोपॉलिटिकल गेम्स. सो कुछ ये बेसिक अल्फाज जो हैं, ये जो लफ्ज़ हैं, ये आईआर के सेक्शंस में यूज़ किए जाते हैं व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द इंटरनेशनल सेक्शंस. जियोपॉलिटिक्स, game politics, these are some of the words, these are a punchline which is fluently used in answer writing, right? And in the statement the Chinese embassy said the US was looking into the stir up the confrontation between the different groups and blocking the stake of geopolitical competitions. And China had been advocating the development of bilateral trade between the countries, and it said it should be conducive to place regional stability and development. तो चाइना ने कहा ये ज़रूरी है, इस तरह का कोशिश किया जाना चाहिए जहाँ पे रीजनल पीस बनाई जा सके, स्टेबिलिटी हो इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप में, साथ के साथ जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसको भी कंटिन्यू करने की ज़रूरत है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द जियोपॉलिटिकल गेम्स. नाउ कमिंग टू द आंसर्स ऑफ द यस्टरडे क्वेश्चंस.
तो जो पहला सवाल है उसके करेक्ट ऑप्शन है डी, दैट द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 इंसर्टेड 21A इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, दैट द अमेंडमेंट प्रोवाइड फॉर द फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 एज अ फंडामेंटल राइट इन द मैनर इन विच स्टेट बाय द लॉ डिटरमिन। आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं इसके बारे में, आप एम लक्ष्मीकांत की बुक इंडियन पॉलिटी में भी पढ़ सकते हैं। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, here the correct option is B, that is the first question is incorrect, statement is incorrect. The practice of murdering infant immediately after the upper caste Bengali Rajput were female and the economic burden. And the second statement is that the Bengal regulation of 1975 and 804 declare infanticide illegal, equivalent to murder, while passing the 1878 made it compulsory to register the babies provided the verification of females. Now moving to the MCQs question of the day. So the first question is coming from culture. Consider the following statement about the painting of Mesolithic period. So the Mesolithic period comprises at least the number of painting among all the period, and the painting during this period were larger in size. So what you have to do, you have to just write answers A, B, C or D. Whatever you feel is the correct answer, you can let us know in the comment section down below. Now the second question is from the economy. Consider the following statement. Which are the advantages or merits of the currency swap agreement, which is also known as CSA. So आपको बताना है the agreement aims to bring the stability in the capital market and it reduce the foreign exchange and interest rate risk. So just let me know which among the following is the correct answer. Any additional information with regards to CSA can also be shared with us in the comment section down below. So do participate, write your answer in the comment sections. And those of you who are new to our channel, do not forget to subscribe Apti+ Academy for Civil Services on YouTube. And if you like this video, if you like our content, do not forget to give a thumbs up. If you have any other concern, do let us know. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Stay home, stay safe. Thank you so much.